साथ में जो नाता है ना वो ख़त्म हो गया है। बट आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि जब मैंने यहाँ पे एसोसिएशन ज्वाइन किया तो मुझे लगा नहीं, ये डिपार्टमेंट के साथ हमारा जो नाता है, जब तक अपनी श्वास है तब तक पूरा नाता है, सबसे मिलते रहेंगे और अपनी जो यादें हैं ताज़ा करते रहेंगे। तो दिस इज़ आवर सेकेंड इनिंग ऑफिस हियर, यू कैन से। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और न्यू मेंबर्स जब ज्वाइन करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। महेश बहल जी आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। हमारी मई 2024 की मीटिंग 4 मई 2024 को यहाँ पे एक हॉल में कंडक्ट की गई थी एंड इट वॉज एनुअल डे सेलिब्रेशन। मीटिंग वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती विजय संदन, माई सेल्फ of the Joint Secretary of DAPWA, by welcoming all its members, and then a tribute to Shri Prabjot Singh was paid by all the members of the DAPWA by observing a 2-minute silence. Then the President of DAPWA along with other executive body members welcomed the chief guest of the day, Shri R.K. Arora, IDS PCDA Army Chandigarh, by presenting a plant pot. Lighting of lamp and Saraswati Vandana was done by the chief guest and distinguished members of the DAPWA. Then there was address by Shri S.P. Singh, the President DAPWA. He presented before the members the details of the activities and the court cases, updation, etc. Other activities held during the year 2023 and 24. Srimati Vijay Sandal gave a brief introduction of the chief guest Shri R.K. Arora and invited him on the dais to address the gathering. Shri R.K. Arora in his address mentioned the efforts done by the PCDA Army Chandigarh under his guidance for the benefits of the DAD and non-DAD pensioners, which was welcomed by the members present there with a huge applause. Shri R.K. Arora also assured to give any support required to the DAPWA members. A documentary prepared by Shri K.K. Sharma was showcased, which was prepared taking into account all the activities of the DAPWA during the year 2023 and 24. Health talk by Dr. Navjot Kaur, DM Nephrology, Consultant Nephrologist at IV Hospital Mohali, was given for kidney-related problems and its preventions. Simultaneously, a free health checkup for all the DAPWA members was conducted by the hospital authorities throughout the program. Shri D.S.D. sir gave best wishes to the birthday boys and girls and congratulated them. Then he called them for the cake cutting ceremony and birthday gifts were given to all of them. Shri Shadilal Sharma, born in 1931, 93-year-old, the senior most member present on the day, was honored wholeheartedly by the DAPWA. He was honored by presenting a shawl. Guest of honor, Shri Joginder Singh, General Secretary of Telecom Department Association and Secretary General CCC GPA, was honored by the President, and then he addressed the gathering. In the cultural program, the following members entertained the gathering with their melodious songs: Shri S.S. Chadha, Shri Trihan sir, Shri S.P. Singh sir, Srimati Sneh Sharma, and Jaspal Singh recited a beautiful poem. Granddaughters of Shri Rajendra Singh presented a beautiful Bhangra dance. Mementos to the guests and the participants were given by the President. The meeting concluded with vote of thanks by Shri Veer Singh sir, and national anthem was played. A light refreshment was served to all the members before the program, and after the program, lunch was served to the members, which was hosted by Shri R.P. Gupta sir. So these were the minutes of the last meeting.
If any doubts are there, if anybody wants to include anything in this, they can raise their hand so that we can write in this. चलिए, तो अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे प्रेसिडेंट सर श्री SP सिंह सर को, ताकि वो गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। सर जोरदार तालियों से प्रेसिडेंट सर का स्वागत करें। Good morning, everybody. Respected Padwar Sahab, Narsinghar ji, और ex officio Jaspal Singh, Kuljit Singh and all my colleagues. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में आप हमारी मीटिंग में आए। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आज थोड़ी अटेंडेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने वो वाले अपने मेंबर्स भी बुला रखे हैं, मेंबर्स हैं चाहे नहीं हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। जो नोशनल इंक्रीमेंट का केस है, जिनकी इंक्रीमेंट एक साथ को लगनी थी, उन्होंने इंक्रीमेंट अर्न कर ली। जहां देखने वाली बात यह है कि इंक्रीमेंट अर्न करी हुई है, 1 साल सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस अर्न रेंडर करके। उनकी इंक्रीमेंट लगनी थी 1 जनवरी से, इसलिए नहीं लगी 1 जनवरी या 1 जुलाई से, इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए और 30 जून को रिटायर हो गए। एज पर आर्टिकल 56J जो है फंडामेंटल रूल्स का, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट उन्हीं को लगेगी जो 1 तारीख को हाजिर है, दफ्तर में आना चाहिए। अर्न कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन दफ्तर में तो आई नहीं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था, तो जो लोग अफेक्टेड थे भी मैंने अर्न तो करी हुई है, तो जो हमने अर्न करा हुआ है वो तो हमें मिलना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिसीजन, आवाज कम है इसकी थोड़ी सी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको जो है आप नोशनली ग्रांट कर दो। नोशनली का मतलब है एक एग्जाम्पशन लेके कि अगर इंक्रीमेंट सर्विस 1 तारीख को आए होते तो इनको लगनी थी तो कितनी पे फिक्स होती, तो नोशनली वो पे फिक्स करके इंक्रीमेंट लगा के तो पेंशन में इंक्रीज हुई, लीव इनकैशमेंट में इंक्रीज हुई और ग्रेचुटी में इंक्रीज हुई। इसमें कुछ लोगों को गलतफहमी रही, कुछ ऐसे भी बंदे थे जो जिनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जुलाई में पड़ती थी, लेकिन उन्होंने भी जो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए तो CGD को लिख दिया कि इंक्रीमेंट लगनी चाहिए। तो CGD ने उनको बताया कि नहीं, आपकी तो लगनी जुलाई में है, आपकी तो ड्यू नहीं है, आपकी सर्विस क्वालिफाइंग 1 साल तो हुए नहीं। वो नहीं, आपने अर्न कर लिया, 1 साल क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर कर दी है, वो तो आएंगे सारे। तो उनके लिए आज हमने बुलाया हुआ है। तो मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है एडवोकेट की, 5000 रुपया एडवोकेट की इंडिविजुअल केस की फीस है। अगर किसी ने अपना अलग से करना है फिर वो 10,000 रुपया देना पड़ेगा, वो भी ऑप्शन ओपन है। अगर अकेले में लगाना है तो 10,000 लगाना है मेरे थ्रू। अगर किसी और के पास चले जाओगे तो फिर तो 15-15 भी लेने वाले बैठे हैं, वो डेट दिया हुआ है हमारे स्टाफ ने। तो एक तो ये था। तो जो इंक्रीमेंट नोशनल एंट्री वाले, एक तो नरसिंह जी ने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। वैसे मैंने डोगरा जी की ड्यूटी लगाई थी, तो वो जो इंक्रीमेंट वाले आए हुए हैं उनको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करनी है। उनके पास एक वो जो CGD को रिप्रेजेंटेशन दिया था वो होना चाहिए, जो CGD से जवाब आया है या नहीं आया वो होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और PPO जो फर्स्ट PPO है जिसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट सारा कुछ लिखा रहता है,
वो चाहिए, उसकी फोटोकॉपी चाहिए, और साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है। उसके बाद मेरे पास एक प्रोफॉर्मा है, वो भरना है, ताकि हमें पता चले कि ये जो कैंडिडेट है ये कौन से दफ्तर से रिटायर हुआ। तो सीजीडीए के पास केस जाएगा, उसको ये तो नहीं पता ना कि ये कहाँ से रिटायर हुआ, तो यहाँ रिटायर हुआ होगा उसी के ऑफिस में जाएगा। इसमें ये भी है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है उन्हीं को लगनी है, उसी को मिलेंगे जो कैट में जाएंगे। ये अब एक चक्कर में मत रहना कि गवर्नमेंट जनरल सैंक्शन दे देगी तो हमें मिल जाएगी, कैट में जाने की क्या ज़रूरत है। वो जब मिलेगा तब मिलेगा, वो तब की बात है, हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये तो हो गया नोशनल इंक्रीमेंट। कितने बंदे आए हैं? एक तो नरसिंह जी बैठे, डोगरा जी हैं, ऊँचा ठाकर, पूरी मैम आपके पास एक और भी है लुधियाने वाला, वो भी है पूरे डॉक्यूमेंट। पैसे तो जरूरी है ना, बिना पैसों के बात नहीं बननी। मेरे पास जलंधर से आए हुए हैं एक बंदे के, बाकी डॉक्यूमेंट शायद डोगरा जी को दे दिए होंगे, रतू के, है ना। तो पैसे अभी आए नहीं, वो अकाउंट नंबर मांग रहे थे। दूसरा केस है हमारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये बहुत ही टीडियस इशू है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 2006 से पहले जो टेबल था उसमें अगर 1 रुपया गवर्नमेंट हमें देती है कम्यूटेशन वैल्यू का, तो 1 रुपया जो है 12 महीने में 11 रुपये कुछ पैसे उसकी वैल्यू आती है। 12 महीने में, 1 साल में, तो 12 साल में 12 रुपये जब 15 रुपये बन गए। गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें 1 रुपया दिया। 1 रुपये के अगर 12 रुपये बने, 12 साल की कैलकुलेशन करी है उन्होंने। 12 से कैलकुलेशन का फार्मूला है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे इंटू जो टेबल में वैल्यू है 11 पॉइंट कुछ 1 महीने की इंटू 12 1 साल की, वो 1 साल की वैल्यू हो गई। उसके बाद 1 महीने की वैल्यू होगी, तो 1 महीने की वैल्यू को 12 महीने से 12 साल से 12 से मल्टीप्लाई करके वो 12 साल की अमाउंट आपको दी गई है। तो जब तो आपको देना था तब तो आपको 12 महीने के हिसाब से दिए, 1 के 12 रुपये इंटरेस्ट लगा के, 1 रुपये दिया 8% इंटरेस्ट लगा, उससे 12 रुपये आपको दिए। जब आपसे लिए 15 रुपये, 12 साल की बजाय 15 साल में, ये इशू है। तो इसको मैंने 1 रुपये के जब 3 रुपये फालतू ले रहे हैं तो आप देख लो आपको कितने मिले होंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने आपसे फालतू पैसे लिए हैं। तो इसके लिए सबको तो जाने की जरूरत नहीं है कोर्ट में, वही आदमी जाएंगे जिनके 12 साल हो गए हैं, रिटायर हुए या होने वाले हैं। अगर ऐसा कोई आदमी केस लगाना चाहता है तो वो अगर हाथ खड़ा करके बता देगा या हम मैसेज भेज के पूछ लेंगे, तो उसकी रिकवरी जो हो रही है ना मंथली, वो हो सकता है स्टे हो जाए। क्योंकि कल जो है पंजाब हरियाणा के गवर्नमेंट के 70 राज्यों ने केस किया था, 10-12 बंदों ने पहले करा हुआ था। उनकी जो मंथली रिकवरी होती है वो जो है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वो बंद कर दी है। डॉक्टर सुधीर सक्सेना मौजूद है। डॉक्टर सुधीर सक्सेना डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी है। ये मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में से आए हैं और आपके सामने कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो है इश्यूज आपके सामने रखेंगे, टॉक रखेंगे, और इनके जिनके कोई क्वेश्चंस हो उसके ऊपर दे कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क टू डॉक्टर साहब।
Now I'll request Dr. Sudhir Saxena to come on the stage for the talk, and I request everybody to welcome Dr. Saxena with a big round of applause. Thank you very much, ma'am, for inviting me, and the CGHS Association for inviting me. बहुत बरस हो गए शायद आप लोगों से मुखातिब हुए। लास्ट टाइम आई थिंक मैं आया था तो कुछ बरस पहले वहाँ सेक्टर 17 में शायद आपका होता था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ मीटिंग होती थी। कई बरस हो गए इस बात को। तो इनफैक्ट मैं जब आया था पिछली बार भी मैंने डिस्कस करा था कि सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली में हार्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। उस समय तक ओके, थैंक यू। उस समय मेरी खुद की उम्र 50 बरस थी, तो मैं सोचता था सीनियर सिटीजनशिप अभी तो बहुत दूर है। तो अब मैं तकरीबन अपने आप को उसी एज ग्रुप में पा रहा हूँ कि मैं तकरीबन दहलीज पर हूँ सीनियर सिटीज़न बनने के। नेक्स्ट ईयर सीनियर सिटीज़न बन जाऊँगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि नाउ आई कैन आइडेंटिफाई मोर विद द पॉपुलेशन ओवर हियर, कि जो पॉपुलेशन मेरे सामने बैठी है इनको क्या प्रॉब्लम्स है। सेम प्रॉब्लम प्रॉब्ली आई विल ऑल्सो फेस इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं ये कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक इंटरेक्टिव सेशन चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं कुछ भी मेरे से पूछ सकें, जवाब मैं देना चाहूँगा। उसके बारे में आपका कोई क्लैरिफिकेशन हो वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं एल्डरली के अंदर, क्योंकि हम लोग सब उस एज ग्रुप में पहुँच गए हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं या कर सकते हैं, और अभी रिसेंटली उसकी क्या मतलब कोई नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो आई हैं जो हेल्प कर सकती हैं। मैं मैक्स हॉस्पिटल से आता हूँ। मैक्स हॉस्पिटल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में रजिस्टर्ड है, और हमें ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ और बेनती करांगा इन्हों भी सारे इतने होंगे। उस तो बाद केक कटन की रस्म होएगी, गिफ्ट भी दिखाया या फोन दिखा जाएगा। उस तो पहला श्रीमती उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जी प्लीज आइए। नेक्स्ट बोलो सर। श्री S.C. जैन, मैडम कैलाश पाठक, V.K. सत्रा, नरसिंह दास जी, आओ सर आओ। ज्ञानचंद रत्तू जी, मैडम बिकनपुरी, महेश कुमार शोए। हाँ जी महेश जी। आरपी शर्मा जी। आरपी शर्मा जी आइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, केक आपको सबको मिलेगा। WC शर्मा, जयश्री राम, मैडम चंद्ररेखा, हरजीत कौर कोहली, दीनानाथ ऋषि, मैडम सुरक्षा मलिक, मलिक साहब आप आ जाओ। मैडम संतोष, N.K. टीमान, OP Sagan,
एन सी डोगरा जी, ए आर मनोजा, बाकी होर किसी साथी का मैं ना लेना भुल गया होना। रेणु वधवा मैडम प्लीज आइए। अनीता कौल मैडम वो नहीं आए। चलिए जोरदार तालियां बजाइए हमारे सब बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। और कोई अगर गलती से रह गया हो और प्लीज कम फॉरवर्ड, जिनका भी बर्थडे हो। नहीं कोई गलती तो नहीं है ना किसी की, छोटा तो नहीं कोई। चलिए आइए। हाँ धीर साहब का भी आज बर्थडे है, जोरदार तालियां। अपना नाम बोले नहीं, धीर साहब अपना नाम बोले नहीं। आओ चलो धीर साहब 11,000 रुपए का 500 दमड़ा। तो धीर साहब ने 500 रुपीज दिए हैं अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में डापा। हाँ जी हाँ जी जी वो वीडियो बन रही है। हाँ जी आइए। हमारे सभी बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे ये इसी तरह से खुश रहे, स्वस्थ रहे और मंथली मीटिंग्स में इस तरह से ही आते रहे, अपना योगदान भी देते रहे। आपका के सभी मेंबर्स की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो नोशनल इंक्रीमेंट वाले अपने धन्यवाद सभी बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स का। एक बार फिर से शुभकामनाएं सभी को और स्पेशली रेणु वधवा मैडम का जिनका आज के दिन ही उनका बर्थडे है, तो रेणु वधवा मैडम के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। उनको बर्थडे विशेष सभी डापा मेंबर्स की तरफ से। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, छोटी सी नहीं बड़ी है कह सकते हैं, कि जो बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स है इन्होंने अपनी खुशी से टापा के लिए योगदान दिया है अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में। श्री एन.के. धीमन सर 500 रुपये, सबके लिए जोरदार तालियां बजती रहे। श्री एन.के. धीमन सर 500 रुपीज, श्रीमती विपिन पुरी मैम 1100 रुपीज, श्री एन.सी. डोगरा सर 500 रुपीज, श्रीमती सुरक्षा मलिक मैम 5000 रुपीज, रेणु वधवा मैम 500 रुपीज, श्री आरती शर्मा सर 500 रुपीज, श्री डी.एस. धीर सर 500 रुपीज और श्री नरसिंह दास सर 500 रुपीज।
सभी के लिए जोरदार तालियां। हमारे फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है डॉक्टरा की, और इस सब का बेनिफिट आप सभी को ही होने वाला है, नो डाउट। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि साइबर क्राइम है किस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो साइबर क्राइम से बचने के लिए या उसके लिए किस तरह की हमें एहतियात रखनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आरती शर्मा जी देंगे। साइबर क्राइम से किस तरह से बचे और किस तरह से हम लोग अलर्ट रहें। आरती शर्मा जी आइए सर। तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अधिकारियों का, कार्यकारिणी जिन्होंने मुझे थोड़ा समय दिया है। तो वैसे मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक का, फिर भी मतलब कि फ्रॉम द लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू जो कुछ मैं समझ सका हूँ उसको मैं, और जो मेरे एक्सपीरियंस में भी आया है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे एक फ्रेंड हैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट संदीप सूरी, वो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, और उनसे जब मैं कई बार इस बारे में बात करता हूँ तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे अवार्ड मिलते हैं, जहाँ कहीं जाता हूँ ऑनर मिलता है, पर इस सब्जेक्ट में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? ये जो साइबर क्राइम्स हैं ये क्या है? जैसे आप देखें समुद्र है, समुद्र में कितना पानी है, कितना उसमें गंदगी पड़ी है, हमें कुछ नहीं पता। वही ये साइबर क्राइम्स है, इसके ऊपर लाज भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इसमें रोज़ ऑनलाइन फ्रॉड इतने हो रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारी मशीनरी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। रोज़ हज़ारों केसेज फाइल हो रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट से कोशिश करते हैं कि हम इसमें कुछ कंज्यूमर्स को कुछ लाभ दे सकें, पर उनके भी हैक लिमिटेड है। इन सब चीज़ों का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, नो डाउट आवर डेली लाइफ हैज बिकम मोर इजी एंड मीनिंगफुल एंड वी आर एबल टू सेव बोथ टाइम एंड एनर्जी, बट एट द सेम टाइम it also throws challenges in our daily with ever increasing number of online frauds. Digital age, while bringing unparalleled conveniences and connectivity, has also seen a parallel and alarming rise in cyber crime. तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप सबको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, एक्सपीरियंस है। तो इसके जो रीजन्स हैं उसके बारे में आपके बात शेयर करना चाहूँगा। रीजन्स क्या हैं? रीजन्स देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा रीजन ये है एल्योरमेंट या लालच। अब हमारे पास तमाम कॉल्स आती हैं कि आपका जी LIC का या इंश्योरेंस का आपको बोनस हम दे रहे हैं, आपका पेंडिंग है, या किसी आपका शेयर का डिविडेंड है, या आपका बिजली का बिल जो है वो आपका बंद हो गया है पेमेंट न करने की वजह से, तो वो आपको रिफंड दे सकते हैं। या आपका जो आधार कार्ड है या आपका जो KYC है, नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर बैंक का, वो अपडेट नहीं है। तो ये सारी जो है अनस्क्रूपुलस कॉल्स आती है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमका मतलब गवर्नमेंट के बारे में कह रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, फिर भी कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है।